Hi guys, welcome to this oral test on oral test of PYQs. Today is 17th October, Friday, and we are going to do the remaining questions of Indus Valley Civilization, the previous year questions from 2016 till 1979, and some extensions of those questions, some learnings based on those questions. Okay. Large scale burning is a feature of or is found in early Harappan period. True or false? Large scale burning is found in early Harappan period. True or false? Yes, it is true. It is true. It has not been asked in any of the PYQ so far, but I think it is given in your maybe Lucent or your NCRT. But I've written it in my notes somewhere. It must have been given. Arya? Yeah, but it was a feature of the transition period, like from transitioning from one phase to the another, not on one particular phase. So early That's all right. Harappan period. So when we are talking of early Harappan period, that means some burning must have happened, and then large scale burning is not a uh, proof of violence. It can happen for any reason, right? So it's not a proof of violence. Just like Harappan civilization came to an end because of some violence, like violent episodes whose remains are found. Now they are debated. अब जैसे मोहनजोदारो में वो बहुत सारे स्केलेटन से इन वन प्लेस डेड मैन लेन जिसको बोलते हैं वो लिखा हुआ है. Some people say it is violence, some people say it is not violence, it cannot be concluded. So वो ऐसा जरूरी नहीं है. तो same way large scale burning might have happened at the end of the Harappan civilization also. Late stage में भी हो सकता है, but early में भी हो सकता है, right? So it's better to say it is a part. In case we are inferring anything wrong or you find evidence to the contrary, you just share with me. I'll put it in the group. By the way, I've created a separate channel for this oral test. The fees of this is 6,500 rupees for those who have not purchased the full mentorship course, that is the full oral test course. For the ones who have purchased the oral test course, this one will be free. The PYQ's oral test will be free. You can join. I'll share the link of this group. Whoever is interested to buy the PYQ's oral test course, it will cost 6,500 rupees. Minimum number of students needed are 30. We will wait at max till the last week of December. By December 31st, if we get 30 students, at least 30 students, paid students, not including my existing oral test students, if we get 30 paid students by 31st December or whatever time period earlier, so we'll start the paid course. If we are unable to get paid students, then uh, very highly likely it is that this oral test, PYQ's oral test course will not happen. All right. So till 31st December at max, free classes will be shared with everyone. You can treat them as your uh, free trial. And once you are sure, then you can join the group which I've created for PYQ's oral test. Damb, Sadat, Amri Nal, Kot Diji, Siswal were prominently early Harappan period regions. True or false? क्या लग रहा है? बाकी लोग? Yes, it is true. Okay. Most of the early and mature sites are in Sindh and Cholistan. True or false?
Most of the early and mature Harappan sites are in Sindh and Cholistan. True or false? Aniket, why is it false? सर मुझे लगा क्योंकि अर्ली और मैच्योर दोनों के ही बारे में बोल रहे हैं, हाँ, तो फिर फिर सिंध और चोलिस्तान में दोनों ही जगह पे दोनों अर्ली और मैच्योर मोस्ट पाए गए हों, ये अनलाइकली लगा। नहीं, दोनों मतलब हमने अर्ली और मैच्योर को कंबाइन कर दिया ना। अर्ली 2500 बीसी से लेके मैच्योर पीरियड तक जो भी तुम्हारा पीरियड है इसका, दोनों का वो पूरा 600-700 साल का पीरियड है, उसमें तो कंबाइन हो ही जाएगा, ट्रू होना चाहिए ना इसका। This has to be taken as one unit. Early and mature period is one unit in this question. So it should be true. Guys, everyone is supposed to open your cameras. If you cannot open, please message me the reason. It's mandatory to open the camera. There is no class without camera. And हर क्लास में नहीं खोल रहे हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, unless it is a problem really beyond your control, which for some students I know it is the case. So please open your cameras. ये कोर्स परचेज करने का भी यही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कैमरा नहीं खोल सकते तो फिर कोर्स यू कैन यू मे नॉट परचेज द कोर्स। ओके, 80% population lived along the Saraswati river. True or false? Ishita, why is it false? Sir, I thought it'll be Indus. It just in fact, why is it not stupidly simple? Why is Indus not stupidly simple? In fact, what you are saying, UPSC is highly likely to give this statement also. It can give Saraswati. If it is giving Saraswati, तो true, because एक तो पुरानी नदी है, अब वो सरस्वती नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन उस टाइम पे एग्जिस्ट करती होगी, तो वो तो ट्रू होना चाहिए क्योंकि अपने आप में ही काउंटर इंटुइटिव है। और अगर तो इंडस दे दिया, वो तो हाईली ऑब्वियस दे रहा है, वो तो फॉल्स ही होना चाहिए। तो दोनों तरफ से मतलब पॉसिबल है ये स्टेटमेंट आना, एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 80% yes lived along the Saraswati. There is absolutely no evidence of use of coins in Harappan period. There is absolutely no evidence of use of coins in Harappan period. Why is it false? Everybody is saying false. Very good. Why is it false? Aniket? एब्सोल्युटली नो एविडेंस सर, इतना हम्म ज़्यादा हम हम्म सॉलिडिफाई नहीं कर सकते ना इस चीज़ को। हम्म और स्टीएटाइट स्टैम्प्स मिले थे, हम्म तो उस टाइप के स्ट्रक्चर्स कभी कॉइन्स और इन सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। Okay, fair enough. So is this the same reasoning for everyone? Okay, then my counter is, why is it not would have heard? If you are saying some coins might have been used, right? You are going for the word. Yes, somebody said coins were in Gupta period. Yes, you're right. And is the use of coin not not an important feature of the dynasties and history that we read? Yes or no? It is an important feature, right? Tamil? So they were advanced enough to use seals. Yeah. So it could possibly also intuitively lead that they could have used coins also, other means of not necessarily a circle or a rectangle one, some sort of No trade problem. thing. But don't you think this is an important enough feature that archaeologists should have found out and we would have known? अब चॉइस वही लेनी है कि इज दिस अ स्टेटमेंट वर्दी एनफ ऑफ सेइंग नहीं सम कॉइन्स मस्ट हैव बीन यूज्ड, या what you are saying, it's absolutely right. Students are going to think on these lines and are this will be the point of confusion. It was such an advanced civilization, should we say some coins, किसी तरीके का coin use हुआ होगा? We
prominently say that this was a trading society, barter के थ्रू होता था ना, तो use of coins is completely opposite to barter. So my submission is, and you can check this online, पिछली क्लास में भी एक ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ था कि वो जो चार्टर मिला, वो चैरियट मिला था सिनोली में, तो उसको हम क्या बोलें कि horses were known or were not known. तो the assumption was अगर चैरियट मिला है, चैरियट में तो घोड़े ही जुड़ते हैं सबसे पहले, ये जरूरी नहीं है. दूसरी बात, जब तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होके विदाउट डाउट प्रूव नहीं हो जाता, वी शुड नॉट बी मेकिंग गेस वर्क हियर. माय पॉइंट इज दैट अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात हो रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग सम माइट बी ट्रू, if it is an important aspect that we are talking of, it's better to say would have heard than to say some cases might be true. Do you agree with this? Everyone, give me thumbs up if yes, face emoji if no. ठीक है ना? तो कंडीशन क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज की बात होनी चाहिए. कॉइन्स एंड बार्टर इकोनॉमी कैसे काम करती थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो हम इसको वुड हैव हर्ड बोलेंगे. लेकिन अगर ऐसे बोलें कि हरप्पन्स डिड नॉट यूज लिपस्टिक या सम फेस कुछ भी पाउडर, कुछ भी, ये तो बहुत माइनर चीज है. इसको डिड नॉट यूज, इसको डिफैक्ट करके फॉल्स बोलो, बिकॉज यहाँ पे हम बोलेंगे कि यार इतने एडवांस थे, फैशन कॉन्शियस थे, तो इट इज हाईली लाइकली दैट दे वुड हैव यूज्ड ऑफ सम काइंड. बट यही लाइन ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर नहीं यूज कर सकते. ठीक है, तो कहाँ वुड हैव हर्ड लगेगा और कहाँ सम या डीप फैक्ट या इस टाइप का लगेगा, वो it will be decided by the importance of the theme which is given in the question. Okay. Most seals had humped bull. Most Harappan seals had humped bull. Everyone should answer. इतना जोर लग रहा है आंसर करने में, तो इसका मतलब रिवाइज नहीं किया है क्लास आने से पहले. Why should it be false, Arya? Sir, it was humpless bull. Humped bull was found in Mesopotamia. Very good. Most seals had humped bull बोला ना मैंने, तो it should be false, है ना? True किसने बोला? True वाले कौन है, हाथ उठाओ. अनिकेत, you said true, right? Why is it true? बुल वाला ही सर याद था मुझे, हम्प्ड और हम्पलेस वाला ये आई डोंट रिकॉल. अनिकेत, वीकनेस आ रही है, रिवीजन नहीं हो रहा है फिर इसका मतलब. ठीक है, एक तो क्लियरली रिवीजन की कमी दिख रही है. दूसरी बात है, why is it not standard fact usually wrong? SFW क्यों नहीं है? ये तो टिपिकल स्टैंडर्ड फैक्ट स्टेटमेंट है ना. What do you feel, everyone? Is it not a standard fact statement? If it is a standard fact statement, in that case it's highly likely that अगर गेस वर्क भी मारना है तो फॉल्स की तरफ जाने की संभावना बहुत हाई है. ठीक है, SFUW. Most seals were made of steatite. Most seals were made of steatite. साहिल, चांदनी का तो खैर पहली बार क्लास कर रही है. आई कांट से इफ शी इज प्रिपेयर्ड. साहिल, तू क्यों चुप बैठा हुआ है? यस और नो बोलो. इट इज ट्रू. व्हाई शुड इट बी ट्रू? बिकॉज मोस्ट सील्स की बात हो रही है, और मोस्ट हो गया तो इसका मतलब मेजॉरिटी, एंड इफ इट इज मेजॉरिटी देन अ मटीरियल विच इज कॉमनली हर्ड शुड बी द आंसर. तो अगर इस केस में वो चर्ट बोल देता, CHERT, चर्ट बोल देता, तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि मोस्ट सील्स की बात हो रही है. सील्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हरप्पन सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है. तो मोस्ट जब बोलेगा तो कुछ सुना हुआ आंसर होना चाहिए. चर्ट अनसुना है, तो मोस्ट सील्स के केस में अगर चर्ट बोलेगा, ओके साहिल, ओके, मोस्ट सील्स के केस में अगर चर्ट बोलेगा तो वो तो अटपटा हो गया ना.
आंसर फिर नहीं होना चाहिए, वो कुछ तो गड़बड़ है उसमें। तो इसीलिए, और चर्ट इसलिए नहीं बोलेगा बिकॉज ये पकड़ना आसान है, बच्चे सोच इतना तो जुगाड़ लगा ही लेंगे कि मोस्ट सील्स है तो कुछ सुना हुआ आंसर होना चाहिए, और स्टेटाइट के अलावा कुछ अदरवाइज 2 ही 3 मटेरियल हैं फिर जो बहुत सुने हुए हैं, एक ब्रोंज है, एक ये टेराकोटा है, एक ये स्टेटाइट है, यही है बस। तो इसमें पता है टेराकोटा नहीं होगा, मेटल नहीं होगा, तो स्टेटाइट ही बचा, वही आंसर होना है ना। तो चर्ट देने का इस केस में फायदा नहीं है। तो इसको तुम या तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फैक्ट बोल सकते हो, XISF। इसमें SFUW करने का चांस बहुत कम है, लेकिन हम्प्ड बुल, हम्पलेस बुल, या वो जो तुम्हारा वो पशुपति शिवा, प्रोटो शिवा वाला जो सील है, उसमें XYZ एनिमल इज देयर या इज नॉट देयर, अगर एक सेंटेंस में आएगा तो SFUW का चांस बहुत हाई है। गेटिंग इट? डिपेंड करता है किस टाइप की इंफॉर्मेशन, हाउ प्रिपेरेबल इट इज, उसके ऊपर वो SFUW या वुड हैव हर्ड या इस लाइन पे लेके जाएगा। Amongst the most significant feature of Harappan civilization was fire-baked bricks. Amongst the most significant feature of Harappan civilization was fire-baked bricks. Punit, you want to share why should it be true? Can you speak? Punit? I think he is not in a position to speak. Prasoon, क्यों true होना चाहिए? Sir, as far as I remember, the difference from Egyptian and Mesopotamian civilizations was that they used sun-dried bricks and IVC used fire brick. So that was one of their unique features. Okay, very good. Why should it be false, Vidhi? So I got confused what Prasoon said. I thought it's opposite. तो अब क्या करें फिर, अब ऑपोजिट इसमें ये देखो कि SFUW का क्या चांस है, how many of you feel it's an extremely important standard fact, so UPSC will not give it wrong, because the moment it gives wrong we will catch it, like स्टेटाइट स्टेटमेंट, या ये इस टाइप का स्लिपरी सा स्टेटमेंट है जहां पे कंफ्यूजन हाई है। तो अगर स्टेटाइट वाले स्टेटमेंट के लिए ये थम्स अप किया है तो इसका मतलब ये SFUW वाला स्टेटमेंट बनता है ना। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, फायर बेक्ड ब्रिक्स नहीं है, सन बेक्ड ब्रिक्स हैं। यू आर गेटिंग इट? द डिफरेंस बिटवीन SFUW कहाँ पे लगेगा और कहाँ वुड हैव हर्ड बोलो या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फैक्ट बोलो, जिसको नहीं छेड़ेगा। जैसे लोथाल में डॉकयार्ड था, ये तो इतना पैदल फैक्ट है कि या तो देगा नहीं, और देगा तो करेक्ट ही देगा, फिर वैसे तो देने लायक है नहीं है इन्फॉर्मेशन। लोथाल में डॉकयार्ड है, ठीक है? ओके, So hence we are saying SFUW ना, इसीलिए false. हाँ, एक वो एस्पेक्ट है उसको देखने का। ये तो हम ऑब्जर्वेशन, हम लेसन्स ले रहे हैं अपने कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स को वो SFUW दे सकता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप होना चाहिए ना, बिकॉज एवरीवन विल श्योरली अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑन IVC या on Ashoka, or on this will go for all history, all subjects. If it is an inviting statement and if it is like memory heavy, थोड़ा confuse करने वाला टाइप का स्टेटमेंट हो, तो बहुत हाई चांस है SFUW जाने का। और अगर बिल्कुल ही ये एकदम ऐसा है कि नहीं गलत हो सकता, ये तुम्हारा EEZ जो होता है, इकोनॉमिक जोन जो होता है, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वो 200 नॉटिकल माइल होता है। इट कैन नॉट बी गिवन एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। The moment it changes, it's just like स्टेटाइट statement. The moment it changes to anything other than 200, वो एकदम पकड़ में आता है ना, तो वो फॉल्स नहीं देगा कभी भी। तो ये बस लर्निंग है, एनालिसिस है, लेकिन तुम लोगों को ये बाय नॉलेज पता होना चाहिए, इसमें इतना अटकने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये दिए गए क्वेश्चंस में भी अटक रहे हो तुम लोग, तो ये समझ लो तुम्हारा वही अच्छा नहीं है PYQs किया हुआ। और हर चीज हम पूछ नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही महंगा कोर्स ले लो, कुछ कोर्स ले लो, मेरे से ले लो, कहीं और से ले लो, हर फैक्ट, एक एक फैक्ट नहीं पूछा जा सकता किसी भी कोर्स में। तो ये ड्यूटी तुम्हारी पड़ती है। हम ये कोर्स को तो यूज करना चाहिए फ्रॉम द एंगल ऑफ जजिंग कि भाई कितने पानी में हो, और अगर ऐसे सिंपल फैक्ट याद नहीं हो रहे हैं, एनालिसिस इज ओके, एनालिसिस नहीं कुछ दिखे तो हम डिस्कस कर लिया, दैट्स फाइन,
लेकिन बाय नॉलेज जो पहले पीवाईक्यू में आ रखा है वो एकदम फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए, तभी हम काउंट करेंगे कि पीवाईक्यू किया है, नहीं तो तब तक नहीं किया है ना। दोबारा से करने हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, Badakhshan was an important, yeah, the most important source of sapphire. Badakhshan was the most important source for sapphire. True or false? इशिता जल्दी करो, सब ट्रू बोल रहे हैं। Why should it be true, अनिकेत? तो मैंने तो HTBC से सोचा है। Yes, STBC only. It's impossible to prepare, no? So even if it is saying the most important, nahi Ishita, why don't you know this? Why is it not STBC? Has to be correct, no? It's an unpreparable statement. So the lesson is, even if the statement says the most important, an important करके बोल देता तो बहुत आसान हो जाता तुम लोगों के लिए। Even if it says the most important, still इसको false नहीं करेंगे because ये unpreparable statement है। Unpreparable statement तो true होना चाहिए, ठीक है। कहां पर है बदख्शान? Can anyone tell? आर्या? Sir, in Afghanistan. Yes. किरथार हिल्स कहां पर है? किरथार हिल्स, प्रसून? पाकिस्तान। किस एलिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये? माइनिंग किस चीज की होती थी यहाँ? सिल्वर। स्टेटाइट की होती थी, स्टेटाइट की माइनिंग होती थी यहाँ पर। Harappans did not import स्टेटाइट, या बोलो सेल्फ सफिशिएंट इन स्टेटाइट प्रोडक्शन। Harappans did not import स्टेटाइट बोलो, या they were self sufficient in, वैसे did not import का आने का चांस ज्यादा है। Harappans did not import स्टेटाइट, ट्रू के फॉल्स? सब लोग जल्दी करो। Why should it be true? Manisha, can you speak? Traveling. Ishita, why should it be true? Or I think that they had some resources. That's true. Then, But yeah, but the question is if they were self-sufficient. I'm not sure, but I think that's the type they had. okay, so is it not going to be the approach of every student? स्टेटाइट सबसे कॉमन मटेरियल था, उनके पास रिसोर्सेज थे। वैसे एक बात बोली जाए कि सेल्फ सफिशिएंसी डज नॉट मीन कि इंपोर्ट नहीं होते। हम गेहूं में सेल्फ सफिशिएंट हैं डज नॉट मीन हम गेहूं इंपोर्ट नहीं करते। इसीलिए मैंने बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी का नहीं देगा वो, इट इंपोर्टेड और डिड नॉट इम्पोर्ट देगा। दैट्स अ मच मोर क्लियरर वे ऑफ सेइंग। चलो, व्हाई शुड इट बी ट्रू स्टेटमेंट सौम्या? यस सर, मेरे को लग रहा था कि नॉट इम्पोर्ट तो एक थोड़ा भी इम्पोर्ट करेगा तो होगा, बट फिर मेरे को लगा हिस्ट्री क्वेश्चंस में, क्योंकि क्या बोलते कंक्रीट ज्यादा हम लोग जाते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन था अभी, शायद मैं भूल रही हूँ कौन सा, उस वजह से मैंने लास्टली बोला कि क्योंकि पढ़ते भी बहुत ज्यादा है स्टेट एड के बारे में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो शायद हो सकता है इम्पोर्ट नहीं करते। ओके, अगर इम्पोर्ट करते तो पता होता, ये बोल रही हो? वुड हैव हर्ड बोल रही हो? यस सर, इम्पोर्ट करते तो पता होता, मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्ट नहीं करते होंगे। Okay, fair enough. Any counter opinion या anybody wants to add to this? Aniket? सर इसमें दो एंगल्स हैं, एक वन फ्रॉम नॉलेज, वन फ्रॉम ईटी। Hmm. नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आई थॉट कि बेबीलोन से काफी सारे स्टीएटाइट के एविडेंसेस मिले थे। ऐसा कुछ स्टैम्प्स या स्टीएटाइट दोनों में से कोई एक मिले थे, एक तो ये इंस्टिंक्ट्स मेरे बोल रहे थे। दूसरा SFUW, जैसे हम लोगों ने जो दूसरा क्वेश्चन किया था अभी के क्लास में, उसमें जो SFUW वाला लॉजिक लग रहा था, वही लॉजिक इसमें भी लग रहा है। ये स्टैंडर्ड फैक्ट है
लेकिन इतना भी स्टैंडर्ड नहीं है कि करेक्ट ही देगा, इसलिए SFUW के साथ आई वेंट। देखो एक बात तो मैं यहाँ क्लियर करूंगा, जो स्टैंडर्ड फैक्ट यूजुअली रॉन्ग की बात तुम करोगे या इवन STBC की बात करोगे, वो सेंटेंसेस थोड़े अलग टाइप के होते हैं। अलग टाइप के इन द सेंस वो थोड़ा फैक्चुअल मेमोरी हैवी बात करेंगे, समझ गए? जैसे प्लोड फील्ड वाज फाउंड इन मोहनजोदारो, ठीक है, टेराकोटा प्लो वाज फाउंड इन बनावली। कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है ना, मेमोरी हैवी स्टेटमेंट है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तुम्हारे SFUW HTBC टाइप टेक्निक्स में। जो जैसे अभी मैंने स्टेटमेंट दिया, इंपोर्ट्स होते थे कि नहीं, बुल वर्शिप करते थे कि नहीं, इस टाइप के जो थोड़े थिंकिंग हैवी स्टेटमेंट्स हैं, समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्चुअल टाइप सेंटेंस हुए ना कि इंपोर्ट करते थे कि नहीं, इसमें कोई फैक्ट नहीं पूछा हुआ, कोई मेमोरी नहीं पूछ रहा है। तो ये सेंटेंसेस इंपोर्ट हैवी, इंपोर्ट्स करते थे कि नहीं, बुल वर्शिप करते थे कि नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी कि नहीं उनके पास, इस टाइप के सेंटेंसेस थिंकिंग हैवी कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस होते हैं, जिनमें HTBC एंड SFUW ऐसा डायरेक्ट नहीं लगता है। आर यू गेटिंग? सो यू नीड टू हैव मोर सब्सटैंशियल रीजन फॉर सेइंग यस और नो। आर यू गेटिंग इट विधि? तो मेरे को ये लगा कि अभी हमने किरतार हिल्स वाला पढ़ा कि स्टेटाइट वहीं से माइनिंग करते हैं, और IVC का प्लेसेस भी हम लोग मतलब वहीं पर लोकेट करते हैं। तो मेरे को लगा सबसे पहले एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट आई थॉट कि आई वुड मार्क दिस ट्रू कि डिड नॉट इम्पोर्ट, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट होंगे। एंड देन आई थॉट कि नहीं, अगर ये ही होता तो स्टूपिडली सिंपल होता, एंड हेंस आई वेंट विथ कि कुछ तो इम्पोर्ट करते ही होंगे। Yes. See, I too believe, in our discussions, firstly, see, it doesn't mean, if I'm saying something doesn't mean that is true and that is what you have to accept. And that's the best way to think about it. Nothing like that. We all are students of this exam. Like, I'm not giving attempts. I'm not that kind of student like you are giving attempts. I'm not in your shoes right now, but I'm a student in the sense from the angle of learning from the PYQs and elimination techniques. So we all are students and we all are brainstorming and we all are collectively, the objective is to discuss so that we collectively arrive at the best ways to think in different situations. Okay, so there's no one best way unless we all have consensus on that. Whatever you feel should be right, and wherever you feel कि there is some wrong conclusion or wrong fact being stated, उसको चेक करके वापस मेरे को मैसेज कर सकते हो. I'll put it as a correction in the oral test PYQ वाला group. Having said that, I too feel this should be, they did not import, मैंने बोला ना, should be a false statement because statite was not like copper or gold, जिसके बारे में क्लियरली बुक में ये दिया हुआ है कि ये बाहर से आती थी चीजें. कॉपर इधर से आता था कैतरी वगैरह से, और गोल्ड कोलार से आता था. इसका अलग से दिया हुआ है कि ये आता था बाहर से. तो इसका मतलब मे बी सम प्रोडक्शन अगर होता हो आजू बाजू, कुछ हो सकता है प्रोडक्शन हो भी, लेकिन ज्यादा हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही होगी. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं देगा कि देयर वाज नो प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड, ये नहीं देगा. ये बहुत कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है. वो ये उसको SFUW टाइप बनाएगा कि कोलार थी कि कुछ और थी जगह, या कोई. अब गणेश्वर कल्चर, देयर वर सम कल्चर्स मेंशन्ड इन NCERT व्हिच वर नॉन हरप्पन, बट दे वर इन दी वेरी मच इन दी हरप्पन सिविलाइजेशन का रीजन. उस रीजन में होते हुए भी दे वर नॉन हरप्पन कल्चर्स. गणेश्वर इज वन such culture mentioned, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर राजस्थान वाला. तो the point is, it is a very common element, material. If it is a common material and we are talking about a primarily trading civilization, to say कि नहीं कोई import नहीं होता था non Harappan, when we say import it means beyond Harappan civilization region से import होना, कि कोई import नहीं होता था, ये बहुत मुश्किल बात है. तो अगर गेस मारना हो तो हम ज्यादा इजीली अराइवेबल कंक्लूजन से मारेंगे ना. व्हाट इज दैट? कि कॉमन एलिमेंट है तो हम अलग से नहीं पढ़ेंगे कि ये इंपोर्ट होता था कि नहीं होता था. एंड बिकॉज इट वाज अ ट्रेडिंग सिविलाइजेशन, हैड गुड टाइज विद नॉन हरप्पन सिविलाइजेशंस, तो देयर इज अ हाई चांस टू से कि इंपोर्ट होता था.
रादर देन टू से कि इंपोर्ट नहीं होता था, बिकॉज ये वुड हैव हर्ड एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये कॉमन मटेरियल है. इट्स नॉट लाइक गोल्ड. गोल्ड एंड कॉपर को फिर भी देयर इज अ एलिमेंट ऑफ वुड हैव हर्ड इफ यू आर पुश्ड टू दैट एक्सटेंट, फिर भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ वुड हैव हर्ड, क्योंकि ये अलग से मेंशन्ड है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? thumbs up if yes, face emoji if no. I don't want to keep repeating and waste time. Great. Okay. Prasoon? So with soapstone or steatite, one issue that I'm facing is that it is still naturally occurring in parts of India like Rajasthan, Punjab, Kashmir, etc. And if we see that the larger IVC was comprising all these areas, so can we take this as importing or just part of the empire? देखो IVC का जो मेन बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड से अगर आ रहा है टेक्निकली दैट शुड काउंट एज इंपोर्ट. Okay. ठीक है ना. जो विच इज योर गुजरात एंड इनफैक्ट इवन टिल दाइमाबाद इट इज सेइंग कि IVC इज देयर. Yes. तो जो IVC की अगर सुनी सी साइट्स की बात होगी तो इंपोर्ट मत काउंट करो उसको. अगर बाहर की साइड, अब जैसे जोधपुरा गणेश्वर की बात हो रही है, वो तो बुक में लिखा हुआ है कि ये इवन इफ इट इज इन जोधपुर रीजन विच इज वेरी मच इन द IVC रीजन, बट इट इज नॉट एन IVC कल्चर. और एंड इट्स नॉट जस्ट वन, कई सारे 3-4 कल्चर हैं कम से कम, तुम्हारी लूसेंट में दिया हुआ है अलग से नॉन IVC कल्चर्स. तो वहां से इंपोर्ट हो रहा है, यस यू कैन से, बिकॉज इट्स अ नॉन IVC रीजन, स्मॉलर रीजन विद इन ब्रॉडर IVC रीजन, तो उसको इंपोर्ट बोल सकते हैं. कॉपर वाज इंपोर्टेड, यस यू कैन से. और बाकी तो इंपोर्ट्स की एक टेबल दे रखी है, लूसेंट में देख लेना, वो मटेरियल जो इंसर्ट उसमें दे रखे हैं, वहां पे ज्यादा फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसमें दिया भी हुआ है. बट कल को कोई ऐसा मटेरियल दे दिया, वी शुड हैव सम कॉन्टेक्स्ट, सम वे ऑफ थिंकिंग, तो दिस विल वर्क. ठीक है. वैसे ये एक शहरी सोख्ता करके ईरान में कोई जगह है, वहां से स्टेटाइट होता था, ये इधर लिखा हुआ है तुम्हारी लूसेंट में, बट यू डोंट नीड टू रीड लूसेंट टू आंसर सच क्वेश्चंस. फाइन. चलो फटाफट से खत्म करेंगे क्लास. On which river is Daimabad located? Arya? Sir, Pravara, Godavari का tribute. Very good. Which is the southernmost site of Indus Valley civilization other than Daimabad, or just before Daimabad, you may say? Arya? The Bhagat Rao in Gujarat. Bhagat Rao. Very good. Okay. Easternmost site is Arya? Alamgirpur, UP. Alamgirpur is on which river, Aniket? Sir, I think it's Ganges or Yamuna. फेमस रिवर होने का चांस बहुत कम है. Ganges और यमुना नहीं है. ट्रिब्यूटरी है यमुना की. हिंडन रिवर है यमुना की ट्रिब्यूटरी, उस पर है आलमगीरपुर. ठीक है. फेमस रिवर होने का चांस बहुत कम इसलिए है बिकॉज ये वुड हैव हर्ड लेवल पे चले जाएगा. फिर अगर नदी भी गंगा है या यमुना है और सदर्न मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट तो हम पढ़ेंगे ही ना, इन एनी केस इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्ट. तो अगर इम्पोर्टेंट सिटी है और इम्पोर्टेंट रिवर है तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हो गए तो वुड हैव हर्ड बनता है. ठीक है. सो इट्स नॉट डायरेक्टली ऑन यमुना, इट्स ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच इज हिंडन. और हिंडन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये अभी जो फ्लड्स आए थे दिल्ली में, तो फिर उसका वो ट्रिब्यूटरी है, यमुना का रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट बन रहा है. और एक हिंडन में एयरबेस भी है जहाँ पे अभी 93rd या 91st कोई तो एयरफोर्स डे अभी सेलिब्रेट हुआ है. तो कैन बी आस्क्ड इन सम वे. नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है आर्या? The Manda. Manda is the northernmost site. On which river is Manda? Chena. चिनाब तो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एंगल से न्यूज में है कि वो बहुत तरीके से पूरा चिनाब का रिवर सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है. You don't need to do any special research. Whatever current affairs I have given in 80 course, that's sufficient, but do it well. Okay.
which was the earliest civilization before excavation of Manda, northernmost? Arya? The Roper in Punjab. Which river is Roper on? Gagra. Satluj. Satluj river. Which is the westernmost site? Vidhi? The Sutka Gandor. सुतका जंडोर कहाँ पर है ये? सर इंडस का स्टार्ट जहाँ से होता है. कहाँ? पाकिस्तान में है. इंडस का स्टार्ट जहाँ से होता है? स्टार्ट तो पहाड़ों में होती, उधर होती है तिब्बत में. माउथ जहाँ पर है, मकरान कोस्ट, उसको माउथ बोलते हैं ना, जहाँ समुद्र पे मिलती है. So that's it guys, in today's class we still have some questions left, वो अगली क्लास में देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे. So I hope you liked today's class. Do send me your feedback, what you liked and what you did not like, and your feedback is the mainstay of whatever courses we run. So don't skimp on that. Keep sharing if you want to have maximum value from this effort, whatever we all are putting. Thank you so much. See you next Friday, 8 o'clock. Thank you. Thank you, sir.